تشریف رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر مملکت، آپ کی اجازت ہو تو تقریب برائے تقسیم سول اعزازات 2021 کے تیسرے سیشن کا آغاز کیا جائے. جناب فدا حسین نائب قاصد ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس گلگت میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے جب 8 جنوری 2005 کو شہر میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے، جس کی بنیادی وجہ ایک شیعہ عالم کا قتل تھا. یہ واقعہ کام کے اوقات میں رونما ہوا اور سرکاری دفاتر کو آگ لگائی گئی. اس مشکل وقت میں جب پورا شہر بھگدڑ کا شکار تھا، آپ نے سنی مسلک سے تعلق رکھنے کے باوجود بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر محکمہ صحت کے بہت سے افسران اور اہلکاروں کی جانیں بچائیں. شجاعت کے اس کارنامے کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب فدا حسین کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب علی آفتاب تارڑ ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو کو سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں کی شناخت کا پرآزمائش کام سپرد کیا گیا. آپ نے دہشت گردوں کے خلاف پھندہ تنگ کیا جو سندھ اور بلوچستان کی تاریخ میں دہشت گردی کی بدترین حملوں کے ماسٹر مائنڈ تھے. ان حملوں میں 7 شریف دھماکہ، امام بارگاہ شکارپور خودکش حملہ، درگاہ حاجن شاہ ماری شریف کا ریموٹ کنٹرول دھماکہ، محرم کے دوران جیکب آباد میں عزاداروں پر خودکش حملہ، پولیس ٹریننگ سینٹر کوئٹہ پر حملہ اور مستون بلوچستان میں سراج احمد رئیسانی پر خودکش حملہ شامل ہیں. آپ نے متعدد آپریشنز میں بذات خود حصہ لیا اور دہشت گردوں کے بہت سے اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیابی حاصل کی. آپ کی شجاعت اور بہادری کے اس مظاہرے کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب علی آفتاب تارڑ کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے. سید شہزاد حسن نے انسداد دہشت گردی کی ایک آپریشنل ٹیم کے انچارج کی حیثیت سے جماعت الاحرار سے منسلک 10 دہشت گردوں کو گرفتار کیا. یہ شرپسند دہشت گردی کی بڑی بڑی سرگرمیوں میں ملوث تھے جس سے صوبہ پنجاب کے طول و عرض پر کئی 100 اموات ہوئیں. آپ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا سے 4 بہت بڑے ریڈ بک دہشت گرد بھی گرفتار کیے، جن میں سے ایک سابق صدر جنرل پرویز مشرف پر راولپنڈی کے مقام پر ہونے والا قاتلانہ حملے میں شامل تھا. ایک اور آپریشن میں آپ نے داعش میں بھرتی کرنے والے اہم افراد کو گرفتار کیا. آپ کی بہادری اور شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید شہزاد حسن کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا. جناب ہارون رشید خان محکمہ انسداد دہشت گردی راولپنڈی کے ریجنل آفیسر ہیں. آپ نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کیا. انٹیلیجنس کی بنیاد پر ایک آپریشن میں اسلامک اسٹیٹ اور القاعدہ کے ایک اشتہاری ملزم احسان ستی نے آپ کی سربراہی میں ہونے والے اس آپریشن پر جوابی کارروائی کی، جس کے دوران اس دہشت گرد نے آپریشنل ٹیم پر پہلے گرنیڈ پھینکا اور پھر اندھادھند فائرنگ شروع کر دی. تاہم ٹیم لیڈر کی حیثیت سے آپ کی جانب سے اٹھائے گئے حفاظتی اقدامات اور فوری جوابی ایکشن کی وجہ سے ٹیم کے ایک بھی رکن کو نقصان نہیں پہنچا اور اس دہشت گرد کا خاتمہ کر دیا گیا. آپ کی پرعزم قیادت، لگن اور غیر معمولی بہادری نے 5 اہلکاروں کی جانیں بچائیں. آپ نے دہشت گردوں کو فرار ہونے سے روکا اور موقع پر ہی انہیں غیر مسلح کر دیا. آپ کی غیر معمولی ہمت اور شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ہارون رشید خان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا.
जनाब फ़खरुद्दीन ने रज़ाकाराना तौर पर सरकारी खुफिया एजेंट जैसे मुश्किल और ख़तरनाक काम के लिए खुद को पेश किया और हिज़्बुल अहरार और इस्लामिक स्टेट में सराहियत कर गए। आपकी सराहियत की वजह से CTD ने इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किए गए ऑपरेशन में 5 दहशतगर्दों को खुदकुश जैकेट्स के हमरा इंतहाई कामयाबी से गिरफ्तार कर लिया। आपने 2 जारहियत पसंद दहशतगर्दों अदील हफीज़ और हारून उस्मान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में मदद की, जिसके नतीजे में वो दोनों हलाक हो गए। 20 जनवरी 2019 को 2 जारहियत पसंद दहशतगर्द अब्दुर्रहमान और काशिफ को इंतहाई मोहतात मनसूबाबंदी करके उनकी गाड़ी को देही इलाकों की जानिब मोड़ते हुए उन्हें गुंजान आबाद इलाके से बाहर निकाल लिया और इस तरह CTD की टीम ने इनके मज़मूम मकासद की राह में रुकावटें खड़ी कर दीं। आपकी बहादरी और हिम्मत की गैर मामूली इजहार के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब फ़खरुद्दीन को तमग़ा शुजाअत का एज़ाज़ अता किया। जनाब मियाँ खान को बतौर सरबराह CTD शेखुपुरा रीजन दहशतगर्दी से निपटने का टास्क सौंपा गया। आला हुकाम ने आपसे मौजूद दहशतगर्दों आमिर रिजवान, शाकिरुल्लाह, नूरुल अमीन और 3 दहशतगर्दों के बारे में मालूमात शेयर की जो फारूकाबाद रोड से शेखुपुरा की जानिब आ रहे थे। आपको लाहौर में दहशतगर्दों को रोकने की हिदायत दी गई। आपने बज़ाते खुद तमाम ऑपरेशन की कमांड करते हुए फ़ौरन CTD ऑपरेशन टीम को रवाना किया। टीम ने रेलवे क्रॉसिंग के नज़दीक 4 मुश्तबा मोटरसाइकिलों जिसमें 7 से 8 मशकूक अफराद सवार थे को तलाश किया और उनका पीछा किया। आपने टीम के हमरा दहशतगर्दों से मुकाबला किया। नतीजे के तौर पर दहशतगर्द रिजवान, शाकिरुल्लाह, नूरुल अमीन और एक नामालूम दहशतगर्द मारे गए। आपकी हिम्मत और बहादरी के गैर मामूली इजहार के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मियाँ खान को तमग़ा शुजाअत का एज़ाज़ अता किया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फ़हीम रज़ा खान ने दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के नेटवर्क को बेनकाब किया जो पाकिस्तान में जासूसी और तख़रीबी माहौल तख्लीक करने में शामिल थे और इन जासूसों को गिरफ़्तार किया जो मुल्क के हसास अदारों और हुकूमती महकमों में सराहियत कर चुके थे। आपकी अनथक कोशिशों ने टेली कम्युनिकेशन के शोबे में हसास और दिफाई तस्नीबात और दिफाई मकामात में दुश्मन क़ुव्वतों की रसाई को ख़त्म कर दिया और CPEC को सबोताज करने की दुश्मन की कोशिशों से मौसर अंदाज से निपटा। आपने दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और उनके सहूलतकारों की जानिब से जानलेवा ख़तरात के बावजूद इन ऑपरेशंस को सरअंजाम दिया। आपकी जुर्रत और शुजाअत के गैर मामूली इजहार के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फ़हीम रज़ा खान को तमग़ा शुजाअत का एज़ाज़ अता किया। मलिक वसीद खान उस्मान खेल कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। 2007 में जब शरपसंद सरगर्मियाँ अरूज पर थीं, आपने अपने लोगों को दहशतगर्दों के शिद्दत पसंद नज़रियात के ख़िलाफ़ खड़े होने और सिक्योरिटी फोर्सेस की गैर मशरूत हमायत के लिए मुतहर्रिक किया, जिसकी वजह से 1 जनवरी 2010 को आपके वालिद ने एक नस्बशुदा धमाका खेज़ IED से होने वाले धमाके में शहादत का जाम नोश फरमाया। ताहम आप साबित कदमी से डटे रहे। 31 अगस्त 2015 को दहशतगर्दों ने निसार आबाद के करीब IED नस्ब की, जिसके धमाके के नतीजे में आप शदीद ज़ख्मी हो गए लेकिन बच गए। अपने ख़ानदान को बार बार जानलेवा धमकियों के बावजूद आप अस्करियत पसंदों के मज़मूम मकासद के सामने डटे रहे और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुकम्मल हमायत की। आपकी शुजाअत और जुर्रत के गैर मामूली इजहार के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मलिक वसीद खान को तमग़ा शुजाअत का एज़ाज़ अता किया। जनाब मौलवी गुलदाद खान
जनाब मौलवी गुलदाद खान का ताल्लुक तरकानी कबीले से है। 2007 के बाद आपने शरपसंदों के खात्मे के लिए अस्करी कार्रवाइयों का भरपूर साथ दिया और बहादुरी से अफवाज के शाना बशाना खड़े रहे। सितंबर 2008 में आपने शरपसंदों के गढ़ से निकलने के लिए सिक्योरिटी अफवाज की मदद की और बहुत सी कीमती जानें बचाईं। शरपसंदों के नस्ब करदा एक खुद साख्ता धमाका खेज डिवाइस से आपके भाई और बेटे ने भी जाम शहादत नोश किया। 17 जून 2019 को जब आप अपने बेटे, पोते और 4 मुहावजों के साथ अपनी ज़मीनों पर गए तो आपकी गाड़ी को रिमोट कंट्रोल खुद साख्ता धमाका खेज डिवाइस से निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में आपका एक मुहाफिज शहीद हो गया जबकि दूसरा शदीद ज़ख्मी हुआ। आप बहादुरी, साबित कदमी और हिब्बुल वतनी का एक मिसाली नमूना है। बहादुरी और शुजात के इस मुजाहरे के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मौलवी गुलदाद खान को तमग़ा शुजात का एजाज़ अता किया। मलिक असलम नूर खान। मलिक असलम नूर खान वज़ीरिस्तान कबीले के एक बहादुर और मुमताज़ शख्सियत हैं। कानून नाफिद करने वाले इदारों और हुकूमत की हिमायत की बुनियाद पर 2001 से अस्करियत पसंदों ने आपको कई मरतबा निशाना बनाया है। मार्च 2007 के दौरान आपने अपने कबीले और गाँव की दिफाई कमेटी को अस्करियत पसंदों के ख़िलाफ़ एक तवील जंग के लिए मुनज़्ज़म किया। नतीजतन 57 अस्करियत पसंद मारे गए, जबकि आपके भाई समेत आपकी कौम के 38 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। आपकी गैर मुनक़सम हमायत के बाइस सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविल इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर रियासत की रिट कायम करने में कामयाब हुई। नतीजतन ख़ित्ते में दायमी अमन और इस्तेहकाम पैदा हुआ है। आपकी बहादुरी और शुजात के इस मुजाहरे के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मलिक असलम नूर खान को तमग़ा शुजात का एजाज़ अता किया है। जनाब मोहम्मद रफ़ी शहीद, जनाब दाऊद खान शहीद और जनाब आलम ज़ेब शहीद। जनाब मोहम्मद रफ़ी सर्वे ऑफिसर, जनाब दाऊद खान सर्वेयर और जनाब आलम ज़ेब सर्वेयर पर मुश्तमिल टीम ने पेशा वराना महारत और फ़राइज़ से मावरा जुर्रत और बहादुरी का मुज़ाहरा किया। सर्वे ऑफ पाकिस्तान के दायरा कार में सौंपे गए फ़राइज़ के तहत सर्वेयर की इस टीम ने कुर्म, खैबर और मोहम्मद के पुरखतर इलाकों में सर्वे का काम जारी रखा। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में काम करने के साथ साथ सर्वे टीम को इलाके में खुद साख्ता धमाका खेज डिवाइस और फायर की धमकियां भी मौसूल हो रही थीं। सर्वे टीम ने सर्वे वर्क की तकमील की और इन काबशों की बदौलत पाकिस्तान पाक अफगान सरहद के साथ साथ कामयाबी से बाड़ लगाने में कामयाब हुआ। सर्वे के इस काम के दौरान 1 अप्रैल 2019 को सर्वे ऑफ पाकिस्तान की टीम और मिलिट्री एहलकारों को ले जाने वाली गाड़ी को पारा चनार के इलाके में तोपसर चौकी से वापस आते हुए हादसा पेश आ गया। गाड़ी काबू से बाहर होकर पहाड़ी से फिसल गई और आप सब ने अपनी जान फ़र्ज़ की राह में कुर्बान करते हुए जाम शहादत नोश किया। जुर्रत और बहादुरी के गैर मामूली मुजाहरे के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद रफ़ी शहीद, जनाब दाऊद खान शहीद और जनाब आलम ज़ेब शहीद को तमग़ा शुजात बाद शहादत के एजाज़ात अता किए हैं। मैं जनाब मोहम्मद रफ़ी शहीद की बेवा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो एजाज़ वसूल करें। मैं जनाब दाऊद खान शहीद की बेवा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो एजाज़ वसूल करें।
اب میں جناب عالم زیب شہید کے فرزند سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اعزاز وصول کریں۔ جناب اللہ رکھا شہید۔ جناب اللہ رکھا ضلع بھنبر کی تحصیل برنالہ کے دوہریاں گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ 6 اکتوبر 2019 کو ایک بہادر سپاہی محمد ذاکر علی شہید نے نالی سب سیکٹر کی سب سے زیادہ آزمائش کن چوکی پر سنتری کے فرائض ادا کرتے ہوئے وطن کے لیے اپنی جان نچھاور کی۔ جناب اللہ رکھا جن کا گھر اس چوکی کے قریب تھا، فوری طور پر وہاں موجود جوانوں کی مدد کو دوڑے۔ آپ نے دشمن کے فائر کی زد میں حرکت کی اور وہاں پہنچ کر نہ صرف اپنے حواس بحال رکھے بلکہ شہید سپاہی کا جسد خاکی وہاں سے نکالنے کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کیں۔ حالانکہ آپ اس عمر سے بخوبی واقف تھے کہ ایسا کرنے میں آپ خود اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ شہید سپاہی کے جسد خاکی کو نکال لے جانے کے عمل میں دشمن کی بزدل فوج نے آپ پر گولیاں برسائیں، جس سے آپ شدید زخمی ہوئے اور 5 جنوری 2020 کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شجاعت اور بہادری کے اس کارنامے کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اللہ رکھا شہید کو تمغہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کی بیوہ وصول کرے۔ محترمہ شکیلہ ناز شہید اور محترمہ غنچہ سرتاج شہید۔ محترمہ شکیلہ ناز اور محترمہ غنچہ سرتاج گزشتہ 15 سال سے یونین کونسل پرمولی میں بطور ہیلتھ ورکرز خدمات سر انجام دے رہی تھیں۔ اس یونین کونسل میں سابقہ دہشت گرد حملوں کے باوجود آپ دونوں اپنے مقصد پر سختی سے کاربند تھیں۔ آپ نے فیلڈ میں اپنے کام کو جاری رکھا اور پولیو ویکسین پلا کر آئندہ نسلوں کی زندگی کو بڑھاوا دیا۔ اپنی اچھی گفتگو کی مہارت، نرم خوئی اور مسلسل کاوشوں کی بدولت آپ لوگوں کے انکار کو صفر پر لے آئیں۔ پولیو مہم کے دوران دہشت گردوں کے ہاتھوں میں پستول اور گولیاں تھیں اور آپ دونوں کے ہاتھ میں ویکسین اور ویکسین رکھنے کا بیگ تھا۔ پولیو کی بیماری کے خاتمے کے لیے قوم کی خدمت کرنے کے دوران آپ دونوں کو فیلڈ میں شہید کر دیا گیا۔ شجاعت اور بہادری کے اس غیر معمولی کارنامے کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ شکیل ناز شہید اور محترمہ غنچہ سرتاج شہید کو تمغہ شجاعت بعد از شہادت کے اعزازات عطا کیے ہیں۔ میں محترمہ شکیل ناز شہید کے خاوند سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اعزاز وصول کریں۔ اب میں محترمہ غنچہ سرتاج شہید کے خاوند سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اعزاز وصول کریں۔ جناب اعتزاز احمد گرایا۔ جناب اعتزاز احمد گرایا 1 اکتوبر 2013 میں بلوچستان پولیس سے منسلک ہوئے اور 2016 سے محکمہ انسداد دہشت گردی میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے ساتھ ہم آہنگی بحال رکھتے ہوئے آپ دہشت گردی کے خلاف ہونے والے تمام آپریشنز کا حصہ رہے ہیں۔ جب دہشت گردوں نے سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنانا شروع کیا تو آپ نے دہشت گرد گروپ کو گرفتار کرنے کے لیے دن رات کام کیا اور 2018 میں انٹیلیجنس بنیاد پر ایک آپریشن کیا جو 3 گھنٹے تک جاری رہا۔ نتیجتاً 3 دہشت گرد مارے گئے جبکہ 6 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ 2019 کے دوران داعش کی تنظیم کی جانب سے کوئٹہ میں پھلوں کی منڈی میں ایک خودکش حملہ کیا گیا۔ بعد ازاں آپ نے ایک آپریشن کے کامیاب منصوبہ بندی اور سربراہی کی جو تقریباً 7 گھنٹے جاری رہا۔ اس کے نتیجے میں 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے جبکہ پولیس کے 2 اہلکار شہید اور 8 زخمی ہوئے اور بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ آپ کی بہادری اور شجاعت کے اس غیر معمولی مظاہرے کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے
जनाब एतजाज़ अहमद गुराया को तमग़ा शुजाअत का एजाज़ अता किया है। जनाब साजिद खान मोहम्मद शहीद। जनाब साजिद खान मोहम्मद 1988 में पुलिस फोर्स से मुंसलिक हुए। अगस्त 2016 के दौरान आपको किला अब्दुल्ला बलूचिस्तान के एसपी मुकर्रर किया गया। किला अब्दुल्ला सिक्योरिटी और दहशत गर्दों की अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आमद के बाइस एक नहायत हसास ज़िला रहा है। नतीजतन किला अब्दुल्ला में जराइम की शरह में बेपनाह इजाफा हुआ और अवाम को पुलिस से एतमाद उठ गया। महदूद वसाइल के बाइस पुलिस को इस सूरत हाल से निपटने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपने पुलिस के महकमे के मुकम्मल इत्मीनान के मुताबिक अपने फ़राइज़ नहायत जुर्रत, बहादरी और फ़र्ज़शनासी से अदा करते हुए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। आप लोगों का पुलिस पे एतमाद बहाल करने के साथ साथ कानून की हुक्मरानी और जुराइम की शरह कम करने में कामयाब हुए। आपकी जुर्रत और बहादरी के इस शानदार मुजाहरे के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ने जनाब साजिद खान मोहम्मद शहीद को तमग़ा शुजाअत बाद शहादत का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपके फ़र्ज़ंद वसूल करेंगे। जनाब शाहिद अली शहीद। जनाब शाहिद अली कोर्ट पुलिस के सब इंस्पेक्टर थे और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मरकज़ी दरवाज़े पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। 29 जून 2020 को सुबह 10 बजे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक दहशतगर्द हमले का निशाना बनाया गया। एक गाड़ी में सवार 4 दहशतगर्दों ने इमारत के मरकज़ी दरवाज़े पर एक हैंड ग्रेनेड फेंका और फायरिंग शुरू कर दी, जबकि ज़िलाई पुलिस, रैपिड रिस्पांस फोर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स ने जवाबी कार्रवाई करते हुए चारों दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। 2 दहशतगर्दों को मरकज़ी दाखिली दरवाज़े पर हलाक कर दिया गया, जबकि दूसरे दोनों दहशतगर्दों को चंद मिनट के अंदर अंदर दूसरे दाखिली दरवाज़े पर हलाक किया गया। कोई भी दहशतगर्द इमारत के अंदर दाखिल होने में कामयाब ना हो सका। आप वो पहले शख्स थे जिन्होंने इमारत के अंदर दाखिल होते दहशतगर्दों के हमले का जवाब इंतहाई जवामर्दी और बहादरी से दिया और अपनी जान कुर्बान कर दी। आपकी शुजाअत और अज़्म व हिम्मत के गैर मामूली इजहार के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ने जनाब शाहिद अली शहीद को तमग़ा शुजाअत बाद शहादत का एजाज़ अता किया है। आपका एजाज़ आपकी बेवा वसूल करेंगे। जनाब इफ्तिखार वाहिद शहीद, जनाब खुदा यार शहीद और जनाब हसन अली शहीद। जनाब इफ्तिखार वाहिद, जनाब खुदा यार और जनाब हसन अली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में बतौर सिक्योरिटी गार्ड्स ड्यूटी पर मामूर थे। 29 जून 2020 को सुबह 10 बजे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक दहशतगर्द हमले का निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड्स खुदकुश हमलों का सामना करने के लिए तरबियत याफ्ता नहीं होते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप सब ने इस हमले का मुकाबला चट्टान जैसे मजबूत इरादे से किया। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मरकज़ी इमारत में दाखिल होने के लिए अंधाधुंध फायरिंग का आगाज़ किया। सद आफरीन है कि खुदकार असले और ग्रेनेड हमलों की जद में ये सिक्योरिटी गार्ड्स दहशतगर्दों को मरकज़ी इमारत तक रसाई हासिल करने की राह में सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे और दहशतगर्द हमलों का मुकाबला इंतहाई जवामर्दी से करते हुए मनसब शहादत पर फाइज हुए। शुजाअत और अज़्म हिम्मत के गैर मामूली इजहार के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ने जनाब इफ्तिखार वाहिद शहीद, जनाब खुदा यार शहीद, जनाब हसन अली शहीद को तमग़ा शुजाअत बाद शहादत के एजाज़ अता किए हैं। मैं जनाब इफ्तिखार वाहिद शहीद की बेवा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो एजाज़ वसूल करें।
میں جناب خدا یار شہید کی بیوہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اعزاز وصول کرے. اب میں جناب حسن علی شہید کے فرزند سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اعزاز وصول کریں. Mr. Muhammad Tahir Javed. Mr. Muhammad Tahir Javed is an active political leader and businessman. He successfully manages a large number of businesses that have created substantial jobs within the United States of America as well as Pakistan. He excelled in multiple business sectors, especially healthcare, wholesale supply chain, energy, and real estate development. He was admirably active in philanthropy at difficult junctures during natural calamities in the USA and Pakistan. In Pakistan, he was one of the leading overseas donors and campaigned effectively to raise funds during 2005 earthquake relief, 2010 flood relief, 2011 CM Punjab Fund, and helped to raise funds for Aabe Pakistan program of Governor Punjab, and most recently for the PM's COVID-19 Relief Fund 2020. His family charity, Haji Jalaluddin Foundation, in the last 10 years funded over 15,000 eye surgeries and runs 3 schools in Toba Tek Singh, and helped youth by establishing their businesses. He funds Helping Hands Run Orphanage in Mansehra and established at least 10 drinking water plants in Tharparkar. Over the last 3 years, he assiduously worked on strengthening the US-Pakistan relationship. He was instrumental in engaging a number of US senators and Congress representatives on Pakistan's contributions. In recognition of his outstanding services in the field of services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Mr. Muhammad Tahir Javed the award of Tamgha-e-Imtiyaz. محترمہ زیبا شہناز. محترمہ زیبا شہناز ایک معروف مزاحیہ اداکارہ اور میزبان ہے. 80 کی دہائی کے کامیاب ترین کامیڈی شو 50-50 میں کام کرنے کے بعد آپ کو لاسانی شہرت حاصل ہوئی، جس میں آپ نے 107 مختلف کردار کامیابی سے نبھانے کا ریکارڈ قائم کیا. آپ نے اپنے فن کو ٹیلی ویژن تک محدود نہیں رکھا، بلکہ آپ نے اسٹیج شوز میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا. چند ایک مشہور ڈراموں میں بہروپیہ، معین اختر، ٹارزن معین اختر، ولیمہ تیار ہے اور بکرا قسطوں پر سر فہرست ہے. بکرا قسطوں پر آپ کا وہ اسٹیج شو تھا جس نے مقبولیت کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیا. اس کے علاوہ آپ نے متعدد پاکستانی فلموں میں بھی اداکاری کی. فن اداکاری کے شعبے میں آپ کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ زیبا شہناز کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب حمید اللہ شاہ ہاشمی. جناب حمید اللہ شاہ ہاشمی ایک مشہور مفکر اور رائٹر ہیں. آپ نے 85 سے زائد کتابیں لکھی ہیں. آپ نے ریڈیو، ٹی وی اور کئی یونیورسٹیوں میں اور کئی ادبی پروگرام کیے. آپ کی مشہور کتابوں میں وارث شاہ، میاں محمد بخش، بلے شاہ شامل ہیں. آپ نے معاشرے میں امن و محبت کے لیے صوفیانہ شاعری اور اس کے پیغام کو فروغ دینے کے لیے کام کیا. آپ کو اپنی کتابوں پر کئی ایوارڈ عطا کیے گئے. وزارت مذہبی امور نے 2000 میں آپ کو بچوں کے لیے تحریر کردہ کتاب سیرت پاک بصیرت ایوارڈ کا اعزاز عطا کیا. ادب کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب حمید اللہ شاہ ہاشمی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے.
जनाब फैसल ईदी। जनाब फैसल ईदी अब्दुस्तार ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। 2016 में अपने वालिद अब्दुस्तार ईदी की वफ़ात के बाद आपने फाउंडेशन की बागडोर संभाली और गुज़िश्ता 4 साल से आपने इस इंसान दोस्त इदारे के नाम और ख़िदमात को बतरीक़ एहसन बरकरार रखा। आलमी वबा कोरोना वायरस के दौरान भी आपकी खिदमत जारी रहीं और आपकी एम्बुलेंस सर्विस मुल्क भर में वायरस से मुतासर अफराद को अस्पतालों और आइसोलेशन मराकज़ तक मुंतकिल करती रहीं। मज़ीद बरा ईदी फाउंडेशन ने इस वबाई मर्ज़ से हलाक होने वाले अफराद की जस्ते खाकी को मुकम्मल एहतराम, ताज़ीम और मजहबी रसूमात के साथ दफन किया। खिदमत आमा के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमत के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ने जनाब फैसल ईदी को तमगा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया। सैयद आमिर महमूद गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट के सरबराह हैं, जो 2017 में 800 मिलियन से ज़्यादा के महासिल के साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े तालीमी नेटवर्क में से एक है। गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट इस वक्त देही इलाकों पर खुसूसी तवज्जो के साथ पाकिस्तान के तूल अर्ज़ पर 700 से ज़ायद स्कूल चला रहा है, जहाँ पसमानदा तबकात के 1 लाख बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। आपका एक प्रोजेक्ट में 1000 से ज़ायद खुसूसी बच्चे आला मेयार की तालीम मुफ्त हासिल कर रहे हैं। आपका एक मनसूबा हिंदू बरादरी स्कूलों का है, जहाँ 700 हिंदू ख़ानदान मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। खिदमत आमा के शोबे में आपकी शानदार कारकर्दगी के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ने जनाब सैयद आमिर महमूद को तमगा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद इलियास। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद इलियास पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के एक ऑफिसर हैं। आपने इस्लामाबाद पुलिस में पहली बार जुर्म की नक्शा कशी, मुजरिम की खाका निगारी, कत्ल की तफ्तीश की खुसूसी टीमों और तफ्तीश डेटा बेस की तश्कील दी, जिसने साइंसी खतूत पर तफ्तीश की सलाहियत में इजाफ़ा किया। आपने कौमी सिक्योरिटी सरबराह रास्त असर अंदाज होने वाले दर्जनों ऑपरेशंस की मनसूबाबंदी और तामील की। आपने कई मुजरमों की गिरफ्तारी के लिए इंतहाई हसास नौइयत के ऑपरेशन की मनसूबाबंदी और तकमील की। उनमें से चंद एक इंतहाई ख़तरनाक मुजरम भी थे, जो कानून नाफिद करने वाले मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी इदारों और एजेंसियों को दरकार थे। बहादुरी और शुजाअत के इस गैर मामूली कारनामे के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद इलियास को तमगा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया। जनाब उमर सईद असिस्टेंट डायरेक्टर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं। आपने दहशतगर्दों और सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशंस की मनसूबाबंदी की। बलूचिस्तान में शिया बरादरी और कानून नाफिद करने वाले इदारों को टारगेट किलिंग का सामना था, जो अमूमी तौर पर गैर मुल्की दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से था। आपने एक ऐसे बुनियादी नेटवर्क की तश्कील और मनसूबाबंदी की जो मस्तूंग और कोयटा में कार्रवाइयाँ करने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त और उनका पता लगाने के लिए दरकार रसाई और मौजूदगी रखता है। आपने ऑपरेशन किंग के बशमोल दाइश के अलावा कामयाबी के साथ मुतअद्दिद ऑपरेशन किए और दाइश नेटवर्क की निशानदेही की और उसका कलाकमा किया। शुजाअत और बहादुरी के इस गैर मामूली कारनामे के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ने जनाब उमर सईद को तमगा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया। जनाब फरीद अहमद खान बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर बाजौड़ में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इंसदादे दहशतगर्दी में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आपका सबसे काबिल ज़िक्र कारनामा ऑपरेशन कियान है, जिसमें आपने
खैर बाजौड़ से 80 लाख रुपए के एवज दाइश के अगवा करदा अवामी नेशनल पार्टी के नायब सदर इकरामुल्लाह मुशवानी को हिफाजत से बरामद किया और अगवा करने वालों के सरगना को इसके 3 साथियों समेत हिरासत में लिया। इस ऑपरेशन की बुनियाद पर दाइश के अमीर की गिरफ्तारी भी अमल में आई। इलावा जी आपने कई ऑपरेशनों की सरबराही की जिसमें बाजौड़ में दाइश के असला और गोला बारूद के इंचार्ज समीउल्लाह सदाम के बशमूल दहशत गर्दों का खात्मा और गिरफ्तारी है। शुजाअत और बहादुरी के इस गैर मामूली कारनामे के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब फरीद अहमद ख़ान को तमगा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। सदर ममलिकत आपकी इजाज़त हो तो इस तकरीब के तीसरे सेशन का इख्तिताम किया जाए।